Hello 10th standard. Hope you people appeared for test also. It was easy test, right? Okay. Let's continue with new lesson today for our social studies. That is, let us start with history lesson number 16. 15th lesson we finished, so let us begin with 16th lesson. That is with liberalization. Now, see, when our classes were going on in school, I explained you certain topics of economics in which I had already explained you about liberalization. But let us go in detail today. We will discuss with advantages and disadvantages of liberalization as well in this video. Okay, before I begin with liberalization, now liberalization, globalization and privatization, these were three steps taken for progress of industries. इंडस्ट्रीज अच्छे से प्रोग्रेस कर सके, अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि कंट्री की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज से होती है. सो इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से सेटअप करना बहुत इम्पोर्टेंट था. तो फाइनली these three steps were taken by which इंडस्ट्री सेटअप करना और इंडस्ट्री रन करना इजी हो गया था लोगों के लिए. ओके, अब by joining hands with government we can say, like not only government can run industry, private owners can also run their industries, and it became very easy after these three things were introduced for industry setup. Okay, let us begin with our lesson directly. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 years plan, one after the other. Monetary policy, fiscal policy and industrial policy have been announced for this. See, 1947 after independence, बहुत ईगरनेस था गवर्नमेंट में कि इंडिया को दोबारा कैसे सेटअप किया जाए, कैसे इंडिया को दोबारा डेवलप किया जाए. सो उसके लिए दे प्लान फॉर 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट जो अपॉइंट होगी वो 5 ईयर्स तक वर्क करेगी, उसके बाद न्यू गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होंगी, राइट. सो बट आफ्टर दैट 5 ईयर्स प्लान के बाद they even started with monetary terms and monetary policy and fiscal policy. Now what is monetary and fiscal policy? See, it is related to banking, that is bank system and money system. Understood? Monetary policy और fiscal policy में मतलब किस तरह से इनकम टैक्स लिए जाएंगे, किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटअप किया जाएगा, किस तरह से लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे. सो काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से. अलॉन्ग विद इट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी लोगों को बाय इंडस्ट्रीज़. सो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट था, राइट. ऑल्दो मैनी ऑफ दीज प्लान्स वर completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby, government investigated and the causes for failure and determined to give new form to different economic policies in order to rectify the error done in the past. So monetary policy introduce किया, fiscal policy, industrial policy introduce किया, apart from that 5 years plan of government introduce किया. लेकिन कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होना चाहिए था इंडिया का, दैट वाज नॉट गोइंग ऑन. सो कम्प्लीटली दोबारा गवर्नमेंट ने स्टडी किया कि कहाँ पर कुछ कमी रह रही है जिसकी वजह से इंडिया अच्छे से अभी भी डेवलप नहीं कर रहा. तो फाइनली दे फाउंड द सॉल्यूशन एंड दे स्टार्टेड विद, दैट इज़ इन दैट रिगार्ड, दैट इज़ पास्ट में जो गलत बात हुई, गलत बात इन द सेंस दे हैव टेकन स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ओनली, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीट सा रह जाता है.
सो दैट थिंग ओनली इट हैपन हियर अगेन। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए दैट इज़ ये पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से जो सोचा है वो डेवलपमेंट नहीं मिल रहा। सो in that regard, the industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization। तो 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए गए, उनमें 3 न्यू स्टेप्स लिए गए एंड दोज 3 न्यू स्टेप्स वर टेकन, that is this one, liberalization, privatization and globalization। ओके, इससे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही हुआ कि इंडस्ट्रीज इजीली सेटअप होने लगे एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू बी सेटअप स्टार्टेड इंक्रीजिंग। एंड जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेगी उतनी ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही थी। ओके, देन लेट अस रीड अबाउट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। Government gradually reduces the restriction and controls imposed on private sector and encourages economic development. This is known as economic liberalization. Many economic reforms related to liberalization which were made in the earlier periods were as follows. So liberalization का मतलब क्या? Reduction in restriction। सी, रिडक्शन मतलब कम करना, रिस्ट्रिक्शन मतलब सख्ती, सख्ती में कम करना। ओके, लाइक पहले गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एंड नाउ इट बिकम वेरी लीनियंट, बहुत लिबरल कर दिया। लाइक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम कर दिए होंगे कि वट एवर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर। ओके, और एल्स जो procedure to set up industry or procedure to take permission of government, so government made these things very easy for individual so that they can go on setting up more and more industry। तो किस तरह से liberalization में points रखे गए थे, let us read it। There was reservation for 18 industries, for the industries other than them compulsion to take government permission was eliminated। See, 18 industries were reserved with government, that is, see, कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट लाइसेंस के बिना तो ओपन नहीं हो सकता, राइट? बट मैनी इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को पहले सेटअप करके बाद में गवर्नमेंट लाइसेंस ले, तो गवर्नमेंट गेव लिबर्टी इन दिस कि ओके, पर्सन कैन सेटअप इंडस्ट्री एंड while working only they can go for procedure of getting documents and procedure of getting permission and license from government। but 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से सेटअप भी नहीं हो सकती थी। now which those 18 industries might be? for example, making of weapons। so कोई भी हथियार खुद नहीं बना सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। ओके, अगर कोई किसी को वेपन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी सेटअप करनी है तो इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट दे विल सेटअप कंपनी एंड देन दे विल स्टार्ट प्रोसीजर ऑफ टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। नो, they have to take license from government before setting up this kind of industry। apart from weapons, if I talk about say like suppose eatable products, because eatable products directly affect to health of people, right? and then tobacco industry or else talk about petroleum industry। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली जो मतलब गवर्नमेंट है वो अपनी परमिशन के बिना इंडस्ट्री किसी को सेटअप नहीं करने देते। ओके, एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन्ड टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, नाउ काफ़ी एरियाज, सी, इंडिविजुअल एनीवन कैन सेटअप इंडस्ट्री, लेकिन एटॉमिक एनर्जी, रेलवे मतलब रेलवे इंडस्ट्री एंड डिफेंस दैट इज मिलिट्री, आर्मी, ये 3 इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे। बाकी
पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कैन गो विद प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। ओके, मतलब दो तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। और एल्स वी कैन टेल गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोसी, भले आप प्राइवेट कंपनी भी ओपन करो बट वन नीड लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट परमिशन, इट इज कंपल्सरी। ओके, बट 3 सच इंडस्ट्रीज लाइक मिलिट्री की कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, देन एटॉमिक दैट इज वेपन्स बनाने की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, एंड ना ही कंपनी हो सकती है किसकी, रेलवे की। इट्स नॉट दैट कि कोई प्राइवेट कंपनी रेलवे को भी वर्क ऑन करेगा, नो। रेलवे, वेपन्स, एटॉमिक एंड डिफेंस, ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी। बाकी जो भी क्राइटेरिया है से लाइक ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं और फर्नीचर मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, these all factories can be opened by private sector as well. Then tradition of compulsory registration for industries was cancelled. कंपल्सरी इंडस्ट्री का रजिस्टर करवाना पहले कंपल्सरी था लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका है। से लाइक सपोज किसी को स्टिचिंग का काम शुरू करना है एंड दे हैव टू गो ऑन बाय टेकिंग ऑर्डर्स एंड डू द वर्क, सो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो दे मे go on doing their work. Okay, it is not harmful, right? So they can go on, but yes, if one needs some chemical factory and all, they need permission of government. Provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for environment was cancelled. See, government permission लेना उन countries के, उन industries के लिए जिनमें से कोई pollution create नहीं होता, कोई भी dangerous chemical वगैरह यूज़ नहीं होता, वो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी नहीं है। ओके, दीज थिंग्स वर प्लस पॉइंट। नाउ लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की अच्छी बात क्या थी वो देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंसंट्रेटेड डेवलपमेंट which led to increase in production. Yes, of course. सी, लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी चांसेस मिले हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, राइट? देन बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेटस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। दैट इज कंपनीज स्टार्टेड वर्किंग एट इंटरनेशनल लेवल। लिबरल हो गई ना, अब इंडिया में अगर हमारा मेन कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट इतना लिबरल हो गए हैं हमारे साथ क्योंकि वी कैन वर्क बाय सिटिंग इन इंडिया, वी कैन वर्क फॉर आवर अनदर कंट्री ब्रांच ऑल्सो। ओके, सो उसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड, कि एक जगह और दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह बिजनेस करना। सो दैट ऑल्सो बिकेम वेरी इजी ड्यू टू लिबरलाइजेशन। Because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. अब फॉरेन में ट्रेड करना मतलब से लाइक सपोज इफ आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट्स इन फॉरेन, सो आई विल गेट फॉरेन करेंसी, राइट? उसी भाव में अगर मुझे कुछ मिलेगा, या मैं अगर उनसे कुछ खरीदूंगी तो मुझे उनके भाव में देना पड़ेगा। सो फॉरेन एक्सचेंज शुरू हो गया, दैट इज लेन देन, अलग अलग करेंसीज में लेन देन शुरू हो गया। Internal infrastructural facilities increased due to liberalization. Internally, people by sitting at home only they can purchase products of made in China, made in America, made in Japan and all, right? So that is all good points for liberalization. But अगर good points हैं तो negative points भी होंगे। Let us see liberalization के negative points क्या हैं। In spite of decrease in restriction, monopoly could not be checked. सी, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो सख्ती है वो तो बहुत कम कर दी, लेकिन मोनोपोली चेक नहीं कर पाए। अभी भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केट में बिना कंपटीशन के बहुत ही अच्छे से रन कर रहे हैं। ओके, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मतलब से लाइक सपोज इफ आई एम हैविंग वन फैक्ट्री, I am doing one production and similar production
not a single company is doing. So it depends upon me कि at what price I have to sell that product. क्योंकि मेरे कंपटीशन में कोई और वो प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा, तो वो मेरे ऊपर होगा कि मैं कितना भी उसमें प्रॉफिट कमाऊँ. तो मोनोपोली में यही होता है कि जिस कंपनी के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, दे गो ऑन सेलिंग देयर थिंग्स इन वेरी expensive cost and they go on earn more and more profit. So कहीं ना कहीं monopoly was not at end, restriction was becoming very less, but monopoly तो अभी भी वहीं की वहीं ही थी. As focus has only been made on industrial sector, India has remained backward in development in agricultural field. कहा जाता है कि agriculture is main occupation of India, लेकिन ज़्यादातर ये सारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस किया. इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में अभी तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ. देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. डिस्पैरिटी मतलब ग्रेट डिफरेंस देखने को मिला है इनकम का, क्योंकि सी गवर्नमेंट जो कंपनीज होगी, से रेलवे है, डिफेंस है, वो लोग क्या है कि गवर्नमेंट विल डिसाइड द सैलरी एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड इक्वल सैलरी फॉर ऑल द पोस्ट एंड ऑल. बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनीज मतलब इंडिविजुअल ओनर और ग्रुप ऑफ ओनर्स. सो पेइंग सैलरी टू वर्कर्स डिपेंड्स अपॉन देम, टू whom they have to pay more or to whom they have to pay less. Okay, so काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलता था बाय दिस सैलरी सिस्टम ऑल्सो. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेप्ट हैड इंक्रीज्ड. सी हम लोग क्या है, ये कंपनी इंडस्ट्री सेटअप इजी हुआ तो इंडियंस स्टार्टेड टेकिंग गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज, वेयरएज अदर कंट्रीज आर नॉट टेकिंग गुड्स इन द सेम अमाउंट फ्रॉम इंडिया. मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हम, लेकिन हमसे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फॉरेन डेप्ट बढ़ रहा है. फॉरेन डेप्ट वी कैन टेल लाइक अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सेलेक्ट सपोज इफ आई एम इंपोर्टिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेरिका, आई हैव टू डू पेमेंट इन डॉलर्स ऑफ दैट, राइट. तो लेकिन उसके सामने अगर कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं लेगा तो मुझे इनकम नहीं होगी, बल्कि मुझे मेरे पॉकेट से मनी देना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं फॉरेन कर्जा जो है वो हम पर चढ़ जाता है. अंडरस्टूड. फॉरेन कर्जा हो जाता है, दूसरी कंट्री का डेप्ट हो जाता है हम पर, जिसको हमें पे ऑन करना इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन. वी स्टडीड अबाउट एडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ लिबरलाइजेशन. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, that we will go with our next video. Till this, please go through this video carefully, as you people are doing economics first time, right? We finished with 15th lesson, but 16th is also not too much for you all people. Just go through very carefully. Okay, thank you.